بہت سے نظریات کی طرح سازشی نظریات بھی ہم نے مغرب سے درآمد کیے۔ اب چونکہ یہ نظریات مغرب سے آئے ہیں تو ان کا آپریشن بھی مغربی معاملات کی بنیاد پر ہوگا، لیکن اس سے پہلے اسلام کی روح سے چند دلائل، جس سے یہ ثابت ہوگا کہ کسی شیطانی خفیہ تنظیم کا عالمی منظرنامے میں کسی طرح کوئی عمل دخل نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس بات پہ بہت زور دیا جا رہا ہے کہ الومناٹی جیسی خفیہ شیطانی تنظیمیں دجال کی آمد کا راستہ صاف کر رہی ہیں، جبکہ مغرب سے درآمد شدہ نظریے میں بھی ہم دو نمبری کر گئے۔ مغرب میں الومناٹی کو شیطان کے عبادت گزاروں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں دجال کے پیروکار یہودی ہوں گے، نہ کہ شیطان کے پجاری۔ دوسری بات یہ کہ زمانہ آخرت کی دجال سے پہلے والی جنگیں بھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان مذہب کی بنیاد پر ہوں گی، جس میں یہ وہی عیسائی ہیں جو خود الومناٹی کے خلاف نظریات رکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کا دشمن صرف یہود و نصارہ کو کہا گیا ہے، شیطان کے پجاریوں کے کسی گروہ کا ذکر نہیں ہوا، تو ان کا وجود بھی زمانہ آخرت سے متعلق مشکوک ہو جاتا ہے۔ پچھلی قسط میں بتایا گیا تھا کہ الومناٹی کی بنیاد ایڈم وائشاپ نے سن 1976 میں رکھی، جس کا اصلی نام دی آرڈر آف پرفیکٹبلسٹ تھا۔ یہ ایک آزاد خیال لوگوں کی تنظیم تھی۔ تعصب، توہم پرستی اور طاقت کے غلط استعمال کی مخالفت اس کے بنیادی مقاصد تھے۔ حقیقت کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ بویریا کے ڈیوک کارل تھیوڈور کی پابندی کے بعد الومناٹی کا وجود ختم ہو گیا۔ اس تنظیم پر لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکانے کے الزام تھے۔ ڈیوک نے ثبوت کے طور پر الومناٹی کی کچھ تصانیف بھی شائع کرنے کا حکم دے دیا۔ الومناٹی کے حقیقی عقائد سے متعلق لیوس میسونک کی کتاب انگریزی میں 2005 میں شائع ہو چکی ہے، جبکہ متبادل خیالی دنیا میں رہنے والے ہنری مکاؤ، کیری کیسیڈی اور ڈیوڈ آئک جیسے لوگوں نے ابھی تک نہ صرف ان کو زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ ایسی پراسرار طاقت اور اختیارات دے رکھے ہیں کہ اس تنظیم کی رازداری، طاقت اور اختیارات کا کوئی ثبوت نہ ہونے کو ہی الومناٹی کے خفیہ، طاقتور اور بااختیار ہونے کا ثبوت بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کا الومناٹی کے افسانے پر آج تک یقین رکھنے کا سرا جان رابنسن کی لکھی گئی کتاب پروف آف اے کانسپریسی سے ملتا ہے۔ سازشی نظریات کے حامل افراد فری میسنز اور الومناٹی کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ وائشاپ نے الومناٹی کی بنیاد فری میسن سے مطمئن نہ ہونے کے بعد رکھی۔ یہ کتاب اپنی اشاعت سے اب تک سازشی نظریات کے حامل افراد کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے اشاعتی اداروں کے ساتھ ساتھ جان برچ سوسائٹی نے بھی اس کتاب کو چھاپا ہے، جبکہ دوسری ہم عصر کتابوں میں اس تنظیم کا عالمی نظام یا نیو ورلڈ آرڈر پر اثر انداز ہونے کی طاقت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ الومناٹی کے وجود کے افسانے کا تسلسل اور اس کی داستانیں مائک وانک اور جان ٹاڈ جیسے حواس باختہ ایونجیلیکلز کی متعصبانہ تحریروں میں منڈلاتی نظر آتی ہیں۔ اس افسانے کے بہت سے چہرے ہیں، اب یہ پڑھنے والے پر منحصر ہے کہ اسے کیا پسند آتا ہے، مثلاً شیطان کی پوجا، فری میسن، صہیونیت، الحاد، ریپٹیلینز یا مذہب سے آزاد معاشی نظام۔ ایک ہی نظریے کے اتنے مختلف زاویے ہونے کے باوجود ہر ایک کا دعوے دار اپنے ورژن کے ثبوت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ الومناٹی خفیہ طور پر دنیا میں ہونے والے واقعات کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کی علامات جیسے دی آل سینگ آئی جو $1 کے نوٹ کے پیچھے بھی بنی ہوئی ہے، ایک ایسا نظریہ یہ کہیے کہ عقیدہ بن گیا ہے کہ چاہے اس کا کوئی بھی ورژن ہو، بڑا ہی موزیقہ خیز ہے۔ امریکہ کے بانیوں نے جب دی گریٹ سیل ڈیزائن کی تب دی آل سینگ آئی ڈیزائن کمیٹی کے ان ممبران نے تجویز کی جو فری میسن تھے ہی نہیں۔ یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ بہت سے کانسپریسی تھیورسٹ فری میسنز اور الومناٹی کو ایک ہی تصور کرتے ہیں۔ ڈیزائن کے وقت اس کا نام دی آل سینگ آئی تھا ہی نہیں، بلکہ آئی آف پرویڈنس تھا، مطلب خدا کے فضل کی نگاہ، جو بہت پہلے سے عیسائی مذہب میں استعمال ہو رہی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دی آل سینگ آئی الومناٹی کا سمبل ہے ہی نہیں، ان کا اصلی سمبل زیتون کی شاخ پہ بیٹھا الو ہے۔ 20ویں صدی کی ڈیس گریفن، نیسٹا ویبسٹر اور ولیم گائے کی سازشی نظریات سے بھری کتابوں کو جان رابنسن کی کتاب کے ساتھ ملا کر یہود مخالف کتاب دی پروٹوکولز آف لرنڈ ایلڈرز آف زائن لکھ دی گئی، جبکہ دوسری طرف البرٹو ریویرا اور جان چیک نے عیسائیوں کے رومن کیتھولک فرقے کو الومناٹی کا پروجیکٹ قرار دے دیا۔ نہ جانے کیوں پاکستان میں صرف یہودیوں والا ورژن امپورٹ ہوا اور کیتھولک والا نہیں، جبکہ مسلمانوں کے دشمن دونوں ہی ہیں، شاید اس لیے کہ یہودی سازش کا منجن زیادہ بکتا ہے۔ ایک امریکی ریڈیو کے ہوسٹ ریک وائز نے 9/11 کو نہ تو مسلمانوں کا اور نہ ہی یہودیوں کا کارنامہ قرار دیا، بلکہ اسے بھی الومناٹی کے حصے میں ڈال دیا، اور ٹوئن ٹاورز کی جگہ بننے والے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو الومناٹی اور فری میسنز کو خراج تحسین گردانا۔
माइक वॉन्ग और जॉन टॉड, जिनका पहले जिक्र गुजरा है, दो जाली साबका शैतान परस्त प्रोटेस्टेंट इवेंजेलिस्ट हैं। ये दोनों इल्यूमिनाटी को शैतान परस्ती का सबसे ऊंचा दर्जा करार देते हैं। माइक का दावा है कि नेवी में भर्ती होने के लिए शैतान परस्ती छोड़कर ईसाईयत इख्तियार करने से कुछ अर्सा कबल ही शैतान परस्तों और जादूगरों की आला सतही कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे इल्यूमिनाटी का इल्म हुआ, जबकि जॉन का दावा है कि वो खुद इल्यूमिनाटी का मेंबर रह चुका है, जो ईसाईयत से पहले के किसी यूरोपीय मजहब ड्रोइड्स की आला सतही काउंसिल है, और इनका मकसद अमेरिका से ईसाईयत को खत्म करके जादूगरी को सरकारी मजहब बनाना है। बावजूद इसके कि जॉन और माइक दोनों की धोखेबाजी बेनकाब हो चुकी है, फिर भी बहुत से इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस इस शैतानी साजिश के नजरिए पर यकीन रखते हैं। इन पर पुख्ता यकीन रखने वालों की बस यही दलील होती है कि ये सब इल्यूमिनाटी की अपने मुखालफिन को बदनाम करने की साजिश है। तो हमारा सवाल है कि क्या इतनी ताकतवर तंजीम इनका मुंह बंद नहीं करवा सकती? YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें लोग साबका इल्यूमिनाटी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सारे कहां से आ गए। चलो, माइक वॉन्ग और जॉन टॉड तो मशहूर हैं, इन छोटे मोटे साबका यूट्यूबर इल्यूमिनाटी का मुंह क्यों बंद नहीं करवा सकते, जबकि किसी आम सी दहशतगर्द तंजीम से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत होता है। फिर इन तमाम साबका इल्यूमिनाटी के मेंबर्स की कहानियों में भी बहुत तजाद पाया जाता है। तो क्या सब के सब एक ही कहानी सुना रहे हैं, लेकिन किसी में भी कोई मुमासलत नहीं? इल्यूमिनाटी का रॉबर्ट एंटन की किताब इल्यूमिनाटस, डैन ब्राउन की किताब द डा विंची कोड और एंजल्स एंड डीमंस में मरकजी किरदार है। स्टीव जॉनसन गेम्स का कार्ड गेम इसी नजरिए की बुनियाद पर है, और इन गेम्स का क्या जिक्र जिसमें इल्यूमिनाटी को या तो हकीकत के तौर पर पेश किया जाता है या खुद इल्यूमिनाटी की तरफ से खेल सकते हैं। मसलन फनकॉम कंपनी का द सीक्रेट वर्ल्ड। हॉलीवुड को चलाने के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ होना बड़ा जाना पहचाना नजरिया है। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी फोर्ड के पीछे भी इन्हीं का हाथ बताया जाता है। ऐसा लगता है कि कोई कंपनी भी उठा लो, यही लोग चला रहे हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि डीप वेब पर इल्यूमिनाटी के राज मिल जाते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक इल्यूमिनाटी में अपनी मौजूदगी के सिंबल्स और इशारे देने का रुझान पाया जाता है, यहाँ तक के नोटों पर भी, जिसका बज़ाहिर कोई मकसद नहीं। टीवी शोज, सियासतदान, मौसीकार और किसी मशहूर शख्सियत या आइकन समझे जाने वाले को इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक के ट्रायंगल और हाथ के इशारों को भी उन्हीं की कारस्तानी माना जाता है। इसकी दो ही वजह हो सकती है कि या तो वो अपने शैतानी मंसूबे आपको बताना चाहते हैं, या फिर वो टीवी पर अपनी नशियात चला चलाकर बोर हो गए हैं। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल टूपाक होगा। जो लोग अमेरिकी म्यूजिक इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं, इन्हें इल्म होगा कि अमेरिकी सियाफाम आबादी में टूपाक की हैसियत किसी देवता जैसी है। इसकी आखिरी एल्बम, जो इसके कत्ल से कुछ अर्सा कबल ही रिलीज हुई थी, इसका नाम द डॉन इल्यूमिनाटी था, जिसने बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया। लोगों ने समझा कि वो इल्यूमिनाटी को कत्ल करने का कह रहा है, जबकि इसने अपने इंटरव्यू में साफ बता दिया कि वो इस सब को नहीं मानता। वो सिर्फ इल्यूमिनाटी के बारे में बेवकूफाना नजरिए को कत्ल करने की बात कर रहा है। इसका इंटरव्यू खुद सुन लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। The next shit is called Illuminati, because that's really what the Illuminati is on. That's why I put the K to it. Because I wanted, the niggas is telling me about this Illuminati shit while I'm in jail, right? Like, the dollars. Right. That's another way to keep your self-esteem low. That's another way to keep you unconfident. Right. And I'm putting the K because I'm killing that Illuminati shit. Trust me, if these motherfuckers wanted to kill you, why the fuck they gonna tell Farrakhan? Why they gonna tell the Nation of Islam? Why they gonna tell this nigga in jail about the plan? How did he know? Right. How did it leak to him? Who told him? Who told him? The Pope? ऐसी ही एक मिसाल अमेरिकी सियाफाम गुलकार जेजी की है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो इल्यूमिनाटी में बहुत आला दर्जे पर फाइज है। इसके हाथ से बनाए जाने वाले तिकोन को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि अपने इशारे से वो अपनी कंपनी रॉकफेलर के लोगो में मौजूद हीरे की तशहीर कर रहा होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अपनी बात साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। जेजी के बारे में ये तक कह दिया गया कि इसने अपनी बेटी का नाम ब्लू आईवी रखा, जिसे उल्टा पढ़ा जाए तो यूवी यल्प बनता है, जिसका लातीनी जबान में मतलब शैतान की बेटी है। पहली बात ये कि भाई उल्टा क्यों पढ़ें, दूसरा ये कि लातीनी ज़बान में शैतान की बेटी के लिए ये तर्जुमा बनता ही नहीं। यकीन नहीं आता तो खुद गूगल करके देख लें, लूसीफर्स डॉटर, नतीजा आपके सामने आ जाएगा। जबकि शैतान के पुजारियों के ऑफिशियल चर्च ने भी इस थ्योरी को बेनकाब किया है और इससे इनकार किया है। इन तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के होते हुए किसी ऐसे सेलिब्रिटी को ढूंढना जो इल्यूमिनाटी का मेंबर ना हो तकरीबन नामुमकिन है। इन तमाम दावों का दारोमदार सिर्फ उन सिंबल्स पर है जो किसी भी वीडियो या तस्वीर में नजर आ जाए। हकीकत में ये सब पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं। मसलन अगर किसी अखबार में सिर्फ इतनी सुर्खी आ जाए कि रेहाना इल्यूमिनाटी की शहजादी या प्रिंसेस ऑफ इल्यूमिनाटी, बस इतना लिखना होगा और लाखों लोग उसकी वीडियो देखने पहुंच जाएंगे। ऐसी वेबसाइट भी हैं जो सिर्फ ऐसे पॉप स्टार्स को ढूंढने के लिए वक्फ हैं जो इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं। बुनियादी तौर पर इनके मुताबिक हर कोई इल्यूमिनाटी का हिस्सा है।
इस मामले में माइकल जैक्सन का केस बड़ा दिलचस्प है। कॉन्स्पिरेसी कम्युनिटी के एक ग्रोह का कहना है कि इल्यूमिनाटी ने इसको लोगों की ब्रेन वॉशिंग के लिए रखा हुआ था, जबकि दूसरे ग्रोह के मुताबिक माइकल जैक्सन मीडिया और म्यूजिक इंडस्ट्री पर इल्यूमिनाटी के कंट्रोल को बेनकाब कर रहा था, जिसकी वजह से इसे कत्ल करवा दिया गया। खैर, मामला जो भी हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने हर साइड कवर की हुई होती है। एक और मजे की बात जो सबूत के तौर पर पेश की जाती है, तो ये कि अगर इल्यूमिनाटी की स्पेलिंग उल्टी लिखी जाए तो सीधा अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA की वेबसाइट पर चले जाते हैं। इसकी सादा सी वजह यह है कि आप भी डोमेन नेम खरीद कर अपनी मर्जी से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। GoDaddy के हुईज डेटाबेस पर जाएं तो इल्यूमिनाटी की उल्टी स्पेलिंग वाले डोमेन के मालिक का नाम और इसका एड्रेस सामने आ जाता है, न कि अमेरिका के किसी गवर्नमेंट के इदारे का। और आखिर में जब भी किसी थोड़े से मशहूर इंसान की हलाकत होती है तो इसका इल्जाम इल्यूमिनाटी पर लगाकर कह दिया जाता है कि वो इल्यूमिनाटी को बेनकाब करने वाला था, इसलिए इसको कत्ल कर दिया गया, या फिर ये कोई शैतानी रस्म के मुताबिक बलि चढ़ गया। जब भी इल्यूमिनाटी के सिंबलिज्म का इनकार किया जाता है तो जवाब मिलता है कि इनकार और तरदीद को भी इल्यूमिनाटी ने ही बनाया है ताकि वो अपने सिंबलिज्म को छुपा सकें। ताज्जुब इस बात पर है कि अगर इल्यूमिनाटी पूरे मीडिया पर कंट्रोल रखते हैं तो प्रिजन प्लैनेट और विजिलेंट सिटीजन जैसी वेबसाइट्स को बंद क्यों नहीं करवा देते, बजाय कि इसको खुला छोड़ दें, जबकि दावों के मुताबिक NSA भी इन्हीं की है और सारी हुकूमतें और मीडिया और गूगल जैसी वेबसाइट भी इन्हीं के कंट्रोल में है। YouTube पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें किसी न किसी सेलिब्रिटी ने अपनी रूह शैतान को बेचने का जिक्र किया है, लेकिन इन वीडियोस में 4 मसले होते हैं। पहला ये कि वीडियो में दिखने वाला सेलिब्रिटी मजाक कर रहा हो, दूसरा ये कि वीडियो को काट छांट कर सियाह को सबक से हटाकर पेश किया गया हो, तीसरा ये कि वीडियो के टाइटल्स ही बड़े गुमराहकुन होते हैं, चौथा और सबसे माकूल जवाब ये कि वीडियो में दिखने वाले शख्स ने ये बात मुहावरतन कही हो, वरना कोई इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया तंजीम का मेंबर भी हो और अपने राज भी किसी इंटरव्यू में बता दे। यूट्यूबर्स की एक और आदत है कि वो किसी भी सेलिब्रिटी का कोई एक जुमला उठा लेंगे और इसको इल्यूमिनाटी से मिला देंगे, फिर चाहे इसका कोई ताल्लुक बनता हो या नहीं। अगर UN किसी गाने को इंडोर्स कर दे तो वो भी इल्यूमिनाटी का बन जाता है। अब चूंकि इस सब से सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा मुफ्त की शोहरत मिलती है तो इन्होंने अब अपने इमेज की परवाह किए बगैर ही इस सब का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रिहाना ने तो सीधा इल्यूमिनाटी प्रिंसेस के अल्फाज ही अपनी म्यूजिक वीडियो में शामिल कर दिए। मार्क टाइस ने सबसे पहले इस तरकीब से फायदा उठाया। लेडी गागा ने इसका फायदा ये कहकर उठाया कि इल्यूमिनाटी मुझे ख्वाब में नजर आते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज ने तो खुदा के बजाय शैतान की कसमें खाना शुरू कर दी। कैटी पेरी ने भी तंजन कहा कि मैंने अपनी रूह शैतान को बेच दी है। जब एमी वाइनहाउस ने अपने आखिरी इंटरव्यू में ट्रायंगल में शामिल होने से इनकार का मजाक उड़ाया और बाद में कत्ल कर दी गई, तब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने बहुत वावेला मचाया था। Yeah, one of them tried to mold me into a big triangle shape, and I went, no, nah, you know, I've got my own style. लाजमी सी बात है, इत्तेफाक होते रहते हैं और वैसे भी ये कोई सबूत तो ना हुआ। और जब किम कार्डेशियन के बच्चे की पैदाइश हुई तो हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इल्यूमिनाटी से मुतालिक बच्चे का नाम रखने पर तुक्के लगा रहा था, फिर सबके तुक्के गलत साबित हुए। द ड्यूस एक्स नामी गेम में इल्यूमिनाटी को दूसरी मशकूक तंजीमों से लड़ता दिखाया गया है, मसलन UN न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नाइट टेम्पलर्स या फीमेल डेथ कैंप्स वगैरह, लेकिन ये सब तो इल्यूमिनाटी के लिए काम नहीं करते। जब कभी इल्यूमिनाटी के वजूद के खिलाफ कोई सबूत पेश किया जाता है या इनके वजूद के हक में पेश किए जाने वाले सबूत को रद्द किया जाए तो जवाब यही मिलता है कि झूठी मालूमात फैलाकर हमें ना वर्गलाओ। ये कह दिया जाता है कि ये सारे सबूत इल्यूमिनाटी ने खुद को खुफिया रखने के लिए बनाए हैं। इस तरह तो इस नजरिए की कोई तस्दीक ही नहीं कर सकेगा। यूट्यूब ही एक वो वाहिद जगह है जहाँ बगैर किसी खौफ व खतर इल्यूमिनाटी को बेनकाब किया जा सकता है। इसमें मेरी तजवीज़ यही है कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें ताकि कोई गलत मालूमात ना पहुँचे, बल्कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस पहुंचे, क्योंकि इनकी सारी वीडियोस बहुत ही मुस्तनद होती हैं। लेकिन सच पूछें तो यूट्यूब किसी भी मामले में मुस्तनद मालूमात के लिए इस्तेमाल ना करें। यूट्यूब हवास बाख्तर लोगों की वीडियोस का सबसे बड़ा जखीरा है। हालांकि यूट्यूब चलाने वाली कंपनी गूगल पर भी इल्यूमिनाटी होने का इल्जाम है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्रीज इस पर मौजूद हैं। कुछ सिर्फ 2-4 मिनट की मीडिया से उठाई तस्वीरों को जोड़कर बना दी गई, लेकिन ज्यादातर 2-4 घंटे की होती हैं और चंद ही ऐसी हैं जो 10 घंटे तवील भी हैं। यूट्यूब का मसला यह है कि ये
सरफिरे लोगों को ज़हीन लेकिन शकी ज़हनियत वाले लोगों तक रसाई देता है। सबूत के तौर पर सेलिब्रिटीज और उनके बच्चे इल्यूमिनाटी के वजूद का इकरार करते नजर आएंगे या सियासतदानों के इंटरव्यूज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। साबका इल्यूमिनाटी और आम लोग सभी इनका राज फाश करते बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगे और सिर्फ इल्यूमिनाटी ही नहीं बल्कि हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का यही हाल मिलेगा। अदाकार रैंडी क्विड ने भी एक ऐसी ही वीडियो बनाई और इस बुनियाद पर कनाडा में सियासी पनाह लेनी चाहिए कि इल्यूमिनाटी के हॉलीवुड स्टार्स को मारने वाला विंग मेरे पीछे पड़ा है। इन लोगों को देखने और सुनने में कभी कभी मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए मेरा मशवरा यही है कि ऐसी वीडियोस पर हाथ ज़रा हल्का ही रखें। अगर देखना बहुत ही ज़रूरी है तो बराए मेहरबानी अपने अकाउंट से लॉगिन करके मत देखिएगा और सबसे बढ़कर कमेंट्स में तो गलती से भी ना जाना। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इल्यूमिनाटी क्या वाकई वजूद रखते हैं। अगर रखते हैं तो इतने ताकतवर होने के बावजूद अपने खिलाफ बनाई जाने वाली वीडियोस को बैन या डिलीट क्यों नहीं करवा सकते और ना ही अपनी तंजीम से निकलने वाले अफराद को रोक पाते हैं।